Access to justice, in its generic sense, means the right of an individual to remediation and justice. It is the bounden duty of the state to provide this essential service to all citizens. This is one of the primary mandates of our Constitution. No democracy would be safe without this fundamental prerequisite of a modern state. The concept of access to justice has two significant components. First is a strong and effective legal system with rights clearly defined by substantive legalization. The second is an accessible judicial system which is available, responsive, and quick. The Constitution of India is a living document of our country and constitutes the basic law of the nation. The preamble of our Constitution aims at securing to all citizens justice, social, economic, and political. Though it is not easy to give a precise meaning of the term justice, by and large, it can be stated that the idea of justice is equated with equity and fairness. Social justice, therefore, would mean that all sections of society, irrespective of caste, creed, sex, place of birth, religion, or language, would be treated equally, and no one would be discriminated on any of these grounds. Similarly, economic justice would mean that all the natural resources of the country would be available for the common good of our society, and no one would suffer from any undeserved want. Whereas political justice entitled all the citizens equal political rights, such as right to vote, right to contest elections, and right to hold public office without discrimination. To achieve this, our Constitution provides for all effective and independent judicial system. Right to access to justice has been recognized as one of the fundamental rights. Just delivery or administration of justice is one of the paramount functions of the state. To bring justice closer to the underprivileged segments of the society, a number of innovative measures, including providing legal aid to the poor, have evolved over time. Article 39A provides as follows, and I quote, "The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall, in particular, provide free legal aid by suitable legalization or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities." In a number of judgments, the Supreme Court has emphasized, while interpreting Article 21 in the light of Article 39A, that legal assistance to the poor accused persons is a constitutional imperative. In the absence of legal assistance, injustice may result, and every act of injustice corrodes the foundation of our democracy. I hope this conclave will find out the shortfall in our justice delivery system and recommended remedial measures which are practical and doable. Considering the challenges ahead, I commend my best wishes to this conclave. I have no doubts in my mind that this initiative would go a long way in realizing the cherished goal enshrined in our Constitution. भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि मैं गांव से आई हूँ।
क्योंकि गांव के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, उनका प्रॉब्लम्स कहाँ है। ज़्यादातर वो लोग 3 जगह जाने पे हिचकिचाते हैं। वो क्या है? खाना, डॉक्टर खाना और कोर्ट। उनको पता है, जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए हैं, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। और जानते हैं तारीख पे तारीख जो भी बच्चा को चाहे वो भी चला जाए। इसीलिए यहाँ इतने एडवोकेट्स, लॉयर्स, चीफ जस्टिस बैठे हैं। चीफ जस्टिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में हम मिलते हैं, बातें करते हैं। आप जानते हैं मैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। गरीब लोगों का जो प्रॉब्लम्स मुझे पता है, इसीलिए मैं थोड़ा उन लोगों के प्रति ज़्यादा झुकाव मेरे पास मेरा है। तो क्या हम उन लोगों को जस्टिस दे पा रहे हैं? अभी तक हम दे रहे हैं। ये मुझे ऐसा मौका मिला था कि मैं जो पॉलिटिक्स में थी तो मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होम डिपार्टमेंट का थी। मौका मिला था हर जेल में जाने के लिए। मैं जब जेल में जाती थी, हर लोगों के साथ वहाँ जो लोग जेल में थे उनके साथ मुझे इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला। वो लोगों ज़्यादा इतने बड़ा ऑफेंस को किए नहीं, इतने बड़ा क्राइम किए नहीं, लेकिन वो लोग वहाँ जेल से 60 से थे। अब वो लोग कौन लोग हैं जो जेल पे हैं? वो लोग कौन लोग हैं? अभी हम जेल जाएंगे। वो लोग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो लोग जो बड़ा क्राइम करते हैं, उन लोग पता है कि जेल में कैसे ना जाए। उनको पता है कौन सी रास्ते में हम जाने से हम जेल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इन लोगों को पता नहीं। मैं यहाँ तो गवर्नमेंट के लोग नहीं है, यहाँ रविंद्र राय जी MP है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी मुझे लगता है लीगल चीज़ को डालना है। उनको पता भी होना चाहिए कहाँ जाने से इनको थोड़ा मिलेगा, राहत मिल सकता है। क्या हम उन लोगों को राहत दे सकते हैं? अभी हाल ही में यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है, यहाँ बहुत अच्छा लोक अदालत भी काम कर रहे हैं। झलसा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ऐसा और कुछ काम कर सकते हैं क्या? जैसे बहुत ऐसे सोसाइटी को मैं जानती हूँ जहाँ पहले गांव में ही सब जितने भी प्रॉब्लम्स वहाँ सॉल्व हुआ करता था। तो लोगों को और इतना परेशानी और झेलना नहीं पड़ता था। लेकिन क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हर ब्लॉक्स में, ओडिशा में ऐसे हुआ है, ऐसे कुछ एडवोकेट्स को वहाँ 2-3 एडवोकेट्स कुछ ऐसे सिविल या क्रिमिनल केसेस वहाँ हैंडल कर सके, जो वहाँ एकदम छोटा से छोटा जो प्रॉब्लम्स वहाँ सॉल्व हो सके। ये तो गवर्नमेंट और इससे बात करना होगा, क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल डिसीजन है। ये मुझे लगता है इनके प्रति कुछ करेंगे तो इतने जो प्रॉब्लम्स है अभी इतने जो अपना चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट की जो वो आँख भी थोड़ा भार आया, क्योंकि इतने लोगों के पॉपुलेशन के लिए जितना लॉयर्स चाहिए, जितना एडवोकेट्स चाहिए, जितना जजेस चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है इसको देने के लिए भी थोड़ा टाइम भी लगेगा। इतने पोस्ट फिलअप करने के लिए, अभी जो रिक्त पोस्ट है उसको फिलअप करने के लिए, और अभी जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो देने के लिए तो टाइम लगेगा। इस बीच हम कुछ कर सकते हैं क्या? ये तो इसीलिए आप जो यहाँ डिस्कशन करेंगे, मुझे लगता है उनके लिए भी थोड़ा ये लोग क्यों डरते हैं, क्यों वो अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ दायर करने के लिए क्यों नहीं आते हैं, कोर्ट को क्यों नहीं आते हैं, और थाना क्यों नहीं, वो जो गिनी चुनी जितने भी प्रॉब्लम जो ये TV
या मीडिया या पेपर मीडिया में आया है, गिने चुने लोगों को हम मदद कर सकते हैं, जो पेपर में आया ये वो। जो बहुत सारे ऐसे मुझे लगता है 99% तो केसेस जो गांव में ही लोग अपना तकदीर को ही और दोष देते हैं, मेरा तकदीर ही खराब है, इसीलिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है इसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, आप इसको डिस्कस